Hi guys, Shivangi this side. Hello, welcome or welcome back. If you're new here, hi, this is Shivangi. Let's Talk is a particular series of episodes where we talk about things, and I would just say subscribe to my channel. And if you're a returning subscriber, hugs, virtual hugs. Uh, so, to be very honest, I had no motivation whatsoever left to actually record this, but I talked to a friend of mine and I got this suggestion that you know what, whatever you have, just put it out there. It doesn't even matter that you're making a big difference in someone else's life, और for that matter तुम कुछ difference कर भी नहीं रहे हो किसी की life में, ठीक है, but if you have something, just talk about it, just do it, don't think much. तो मुझे मन नहीं कर रहा था to be honest रिकॉर्ड करने का, but yeah, I got motivated and now I'm sitting here recording this. So let's get started. uh, अगर वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो एंड तक देख कर जाना, देखना भी क्या है यार, ईयरफोन्स लगा लो, सुन लेना, एंड डू लेट मी नो कि if you get anything from it, literally anything from it. So yeah, let's get started. So, the thing which we are going to talk about today is health, and how health is literally everything that you've got. कैसे जो बोलते थे ना बचपन में, कोट्स सीखते थे, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो कैसे हेल्थ सच में तुम्हारी वेल्थ है और उसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और I'm not only talking about your physical health, I'm talking about health as a whole en- entity that you've got. Your mental, spiritual, uh, physical, emotional, तुम्हारी health, and how important it actually is to take care of your health, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या हो जाए, तुम्हें नहीं पता कि ये जो सांसें चल रही है ये कब तक चलने वाली है। आई नो, आई अभी आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, एंड नॉट इवन, अगर मैं अपने रिलेटिव्स या अपने क्लोज फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स की भी बात ना करूं, अगर तुम ऐसे भी देखो तो पीपल आर डाइंग, people are begging for their lives, right? Because that is all we've got. People are dying due to COVID, due to starvation, not having jobs, not having homes. So many things are happening, right? And it is so difficult to actually accept all these things with whatever we have got. एंड साथ साथ एक्नॉलेज करना कि तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास लिटरली दुनिया की हर एक चीज़ है, और अगर नहीं भी है तो उसके बाद भी जो थोड़ा सा है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। एंड वी डोंट डू दैट। तुम लास्ट टाइम कब ग्रेटफुल हुए थे, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उनके लिए? सो आई टेल यू, आई ओपन माई इंस्टाग्राम and I scroll. I tap. I see the stories. I see कोविड के लिए वो प्लाज्मा के लिए जो शेयर कर रहे हैं स्टोरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए शेयर कर रहे हैं स्टोरीज, एंड आई गेट टू मच अफेक्टेड बाय इट। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी भर जाती है दिल में कि ये क्या हो रहा है, वॉट इज़ हैपनिंग, मतलब कि समझ नहीं आता क्या करना है। I open the news channel, I see migrant workers, try to run away for their lives back to their villages, for for their home, for shelter, for food, for everything. I don't know what to do. I feel so helpless. I can't go out there and tell them कि मेरे घर आ जाओ यार, it's okay. I can't do anything for them, right? All I can do is feel negative about it, feel bad about it, literally bad about it, and okay.
So I open the newspaper first thing in the morning, and all I see is cases rising and rising and not stopping at all. Right? I I call my friend up, and I only listen that, you know, कल कल my relative died, कल उससे उससे एक दिन पहले शी टेस्टेड पॉजिटिव, उसके एक दिन बाद ही टेस्टेड पॉजिटिव. I only hear these things. So, how to actually deal with all of this, and how to actually accept all of this अंदर अपने, है ना? मतलब, if it is not happening with me, if it is not happening with you, if you're watching this video, and with God's grace, and fortunately it hasn't happened with you, but it is happening all around, right? And you actually need to acknowledge this, because if you don't, you can't live in ignorance, right? You have to acknowledge all these things eventually. You will have to. Okay? So there's just this feeling of helplessness that there is literally nothing that I can do to elevate someone else's life. ठीक है? एंड इसीलिए एक और ज़्यादा उस ब्लैक होल में मैं जा रही हूँ, उस डार्क जगह पर मैं जा रही हूँ कि आई एम टोटली यूजलेस, आई कांट डू एनीथिंग. ठीक है? अच्छा, नाउ हाउ इज़ इट हेल्पिंग यू और दैट पर्सन इन एनी वे? इज़ इट हेल्पिंग? क्या तुम्हारे दुखी होने से, या फिर यू कसिंग योर लाइफ, यू कसिंग योर सर्कमस्टांसेस, क्या इन सब चीज़ों से तुम्हें या उस इंसान को या उन लोगों को हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, क्या कुछ हेल्प हो रही है? आई गेस नॉट. आई totally believe no is the answer, right? So, what are we actually doing? We are trapping ourselves into those traps which are actually not meant for us. ठीक है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा वाई शुड आई फील बैड अबाउट इट. नो, दैट इज़ नॉट द मैसेज. डोंट टेक इट इन दैट वे. You have to have that sympathy for the other living being, है ना? You have to have that kind of, sorry, empathy is what we call when, yeah, so you have to have that empathy in yourself, right? That is what makes you human. But then if it is affecting your mental health to such an extent that तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, that is wrong. You have to have a balance of things, right? And सबसे पहली चीज़, स्टॉप टॉर्चरिंग विद योर सेल्फ. सॉरी, स्टॉप टॉर्चरिंग योर सेल्फ, नॉट विद योर सेल्फ. पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज, मैं बता रही हूँ ना, मैं कंप्लीटली जोन्ड आउट हूँ इस टाइम पर. बट I really need to share some things that I have in mind. I think that they might help you. So yeah, so stop torturing yourself. ठीक है? किसी भी चीज़ का एक्सेस ना हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है. ठीक है? अगर तुम्हें पता है कि उस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल पे वही सेम चीज़ चलने वाली है पूरे दिन, तो थोड़े टाइम बाद बंद कर दो यार उसको. पूरे दिन लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा. अगर तुम जानते हो कि ये सारी चीज़ें तुम्हें इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, तो एक ब्रेक लो अपने लिए. ठीक है? चीज़ों को समझने की कोशिश करो. चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो. छोटी सी बबल में मत रहो. ठीक है? यू नो दैट देयर इज़ ऑलरेडी इतना बुरा दैट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू. ठीक है? यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यू हैव टू ट्राई एंड एक्नॉलेज द फैक्ट दैट तुम्हारे पास क्या क्या है, what all you have got. You have to remember the fact that if you are not in that position, you watching this video, I making this video, अगर हम लोगों के पास ये चीज़ है कि फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हमारा ये प्रिविलेज है, हमारी ये ब्लेसिंग है. ठीक है? एंड जिसके भी साथ हो रहा है, जिनके भी साथ हो रहा है ये सारी चीज़ें, हम लोगों को ट्राई करना है कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें.
ठीक है। और उसके लिए स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ, स्टार्ट मेकिंग चेंजेस विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। यू रियली 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 हैव टू स्टॉप बीइंग इग्नोरेंट नाउ, ठीक है। दिस इज़ लिटरली, दिस इज़ हाई टाइम गाइज। बहुत हो गया इग्नोरेंस, बहुत हो गया कि हमें कुछ नहीं हो सकता, कोरोना को हम छू के, कोरोना हमें छू के निकल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। नो, डोंट। बहुत बहुत क्लीशे हो गई हैं अब ये सारी चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ रियली रियली अ वेरी हाई टाइम एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। तो all I want to say is that take care of yourself. You all know what you have to do, ठीक है। बट फिजिकली तुम्हें पता है तुम्हें अपने साथ क्या क्या करना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की स्लीप साइकिल्स पूरी की पूरी मेस्ड अप है, ठीक है। और तुम्हें पता है तुम्हारी इम्यूनिटी इन चीज़ों से नहीं बढ़ने वाली है। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है अपने आप को टाइम पर सुलाना, टाइम पर उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। बट स्टार्ट डूइंग दैट प्लीज़, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, थोड़ा बहुत स्टार्ट डूइंग इट। आई वेक अप एट 7 in the morning, 7:30 to 8:30 आई हैव माई योगा क्लास जिसके अंदर स्ट्रेचिंग, कार्डियो, योगा सब कुछ होता है। इफ़ माई योगा मैम इज़ वॉचिंग दिस, हाय। सो मुझे तो वो पूरा तोड़ के रख देते हैं उसमें, योगा क्लास में पूरा अच्छे से तोड़ ताड़ के रख देते हैं वो योगा तो मतलब कि मतलब। और उसके बाद आई फील सो लाइट, लिटरली आई फील सो लाइट आफ्टर डूइंग इट। एंड मैंने जितना भी मैंने पूरे पीरियड में हेल्थ अपनी वो करी है, बेटर करी है, गेन करा है, सब कुछ किया है, वो वो उस एक्सरसाइजिंग की वजह से। और उसके बाद ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर डाइट। यार तुम्हें तो सारा दुनिया का सारा खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, ढंग से खाओ ना यार। तुम क्यों जंक फूड थोड़े टाइम के लिए रोक दो। मुझे पता है नहीं हो पाता, ट्राई, चीज़ें करने से होती है, ट्राई करने से होती है। यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ गाइज, बिकॉज सच में अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पानी है, सब कुछ मिट्टी है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। तुम्हें अपनी तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए एक एक चीज़, तुम्हें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो फिर तुम कुछ और जान के क्या ही कर लोगे यार। और ये सब तो चलो थोड़ा फिज़िकल और उन सब बारे में बातें हो गई। मेंटली हम रोज़ अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं, हम जानते भी नहीं हैं, पता है, हम जानते भी नहीं हैं। ये जो फ़ोन की ब्लू लाइट है, मैं क्यों बोल रही थी कि क्या देखोगे, सुन लेना कान में लगा के, मैं क्यों बोल रही थी। ये फ़ोन की ब्लू लाइट, दिस इज़ लिटरली द मोस्ट डेंजरस थिंग। एंड वी आर लिटरली, अब तो वी आर लिटरली कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग इन टू दी स्क्रीन्स। तो ट्राई करो कि जितना पॉसिबल हो सके इस चीज़ से दूर रहो। अगर ये इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें तो उनके लिए डू इट ओके। बट अगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सो स्टे अवे फ्रॉम इट। मेरा पूरे दिन ऑलमोस्ट स्क्रीन का ही काम होता है, ठीक है। क्लासेस तो चलो अब थोड़ा सा हो गया है कि असाइनमेंट सबमिशन है वो होता रहता है उसमें, तो उसमें भी तुम्हें स्क्रीन पे लगे रहना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन पे लगे रहना है। देन मेरा सोसाइटी का काम है स्क्रीन, तो फिर उसकी हम लोग ये सब एक्नॉलेज करना ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम कितनी सारी जगहों से, कितनी सारी चीज़ों से ब्लेस्ड हैं एक्चुअल में। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं एकदम, ठीक है। स्टार्ट कीपिंग, मतलब वेन एवर यू वेक अप और वेन एवर यू गो टू स्लीप, राइट वन लाइन, जस्ट वन लाइन इन दैट कि टुडे, क्योंकि इट इज़ सो ईजी टू फील लो एट दिस टाइम। येस, ईजी नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू फील लो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो वेन एवर यू फील लाइक इट, तो मतलब जब भी तुम सोने जा रहे हो या जब भी तुम उठ रहे हो, एक लाइन लिखो दैट टुडे मैं उठी और मैंने डायरी में जाके लिखा कि आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि
मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रह सकती हूँ, क्योंकि लोगों के पास नहीं है। ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं क्योंकि मैं खा सकती हूँ जो मुझे चाहिए एक्चुअली। मुझे आज आलू का पराठा खाना है तो शायद मैं खा सकती हूँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है। पर हम भूल जाते हैं यार, एक छोटी से छोटी चीज़। मैं आज बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास हाथ है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली नहीं पता तुम लोग इन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करोगे, बट आई आई फील comfort in all these things. I genuinely feel happy for all these things. And if you start to notice these little things in your life, these are going to add up to so much more that you don't even know. And the next time, whenever you feel low, you open this diary of yours, you read all the little things that you've written, that I'm grateful because I have my mom by my side, I'm grateful because I have these hands जिनसे मैंने कभी ना कभी ये लिखा होगा, I'm grateful because I have such beautiful such a beautiful house to live in. तो वो जो लो वाली फीलिंग होगी ना, इंस्टेंटली तुम लोगों को बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज घर में। मम्मा पापा बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो हाँ, तो हाँ, तो बिकॉज़ क्या होता है कि और फिर मेंटल हेल्थ हम लोग इतना ज़्यादा अपने आप को वो करते हैं। फ़ोन जो है, जो बाय फ़ार सबसे बड़ी परेशानी है सबके मम्मी पापा की। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है कि हम अपना फ़ोन खोलते हैं, 100 मैसेजेस। भाई, क्या है ये, इतनी एंग्जाइटी, कैसे किस किस को क्या क्या लिखूं, क्या रिप्लाई करूं, अरे इसने भी मैसेज कर दिया, अबे यार इसने क्यों कर दिया। चलो, एक केस हो गया। दूसरा केस, फ़ोन खोला, पूरे दिन फ़ोन नहीं चलाया था, रात में फ़ोन खोला, ज़ीरो मैसेजेस। यार, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, किसी को मेरी याद ही नहीं आती है, मुझे किसी ने मैसेज क्यों नहीं करा है। मतलब एकदम उसमें चले गए कि सेल्फ डाउट, सेल्फ उसमें कि क्या चल रहा है। तो यार, ये बात याद रखो कि चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है, चाहे तुम्हें 10 जने पूछ रहे हैं, चाहे तुम्हें कोई भी नहीं पूछ रहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या तुम अपने आप को पूछ रहे हो इस टाइम पे। क्या तुम्हें परवाह है कि तुम कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि वो परवाह करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें क्या चाहिए अभी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि दूसरे तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं या दूसरे तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, दूसरों को परवाह है या नहीं। भाई, कैसा है तू, कहाँ है तू, क्या कर रहा है तू, कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं पूछ रहा, चिल। अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, चिल। वो वो काम मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये काम तभी मेंटेन कर पाओगे जब तुम खुद से कनेक्टेड होगे। तुम्हारी तुम्हारी वर्थ या तुम्हारी सेल्फ एस्टीम या तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस या कुछ भी, ये कोई और नहीं बताएगा तुम्हें, ये तुम खुद बताओगे। तुम अपने बारे में जैसा फील करोगे, सामने वाले भी तुम्हारे बारे में वैसा ही फील करेंगे। इफ़ यू थिंक दैट यू आर द बॉस आउट देयर, यू हैव एवरीथिंग इन यू, यू लिटरली कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ, देन रिमेंबर कि लोग भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। और अगर तुम अपने आप को बुरा सोचोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस, आई एम, तो लोग भी यही सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छा अट्रैक्ट करोगे। तुम अपने बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलते हो ना, वो फीड करता रहता है। तुम अगर ये चीज़ बोल भी रहे हो ना कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ तो गलत होगा ही, तो हो जाएगा। ठीक है। और अगर तुम सब कुछ अच्छा 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 बोल रहे होगे कि सब अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये ऐसे नहीं बोलना कि खुद को एक झूठे दिलासे दे रहे हो कि हाँ यार सब अच्छा ही है, हाँ सब सही है, नहीं, ये नहीं करना है। बिलीव करो उस चीज़ में, बिलीव करो कि ये जो दुख या ये जो बुरा हो रहा है या ये जो भी है, ये चीज़ बहुत जल्दी इट विल पास, इट विल पास। द फनी थिंग इज़ कि हम लोगों को लगता है कि जो दुख का या जो ये जो ग्रीफ होता है या ये जो भी सैड मोमेंट्स होते हैं ना,
क्या होगी अगर ये हमेशा ही रुक जाए, क्या होगी मैं इससे कभी बाहर ही ना आ पाऊँ। हम हमेशा ये सोचते हैं, और जैसे ही कुछ अच्छा होता है तो हम क्या डर जाते हैं, हम क्या सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये अभी तो अच्छा हो रहा है, पर कल को अगर ये चीज़ ना रही तो, अगर अभी 1 घंटे बाद ही ये चीज़ मुझसे छीन गई तो। उस प्रोसेस को उल्टा करके देखो, सोचो कि जो बुरा हुआ है ना, हो जाएगा, वक्त के साथ निकल जाएगा, और जो अच्छा हो रहा है क्या पता हमेशा ऐसा ही रह जाए। क्या पता सच में ये जो अब अच्छा होना शुरू हुआ है ये अच्छा ही रहे। उस बारे में सोच कर देखो। देयर वाज दिस कोट ऑल्सो ना, कि what what if it happened exactly like you wanted it to be, or even greater that than that। मैं लिख दूंगी यार नीचे, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, मैं लिख दूंगी। सो व्हाट इफ इट हैपेंड एग्जैक्टली लाइक यू वांटेड इट टू हैपन, और इवन ग्रेटर देन दैट। एंटरटेन दैट थॉट। सोच कर देखो, अच्छा सोच कर देखो, और सोच कर देखो कि ऐसा ही हो जाए या उससे भी बहुत अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। और ये जो मैंने ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ बोली ना, ये तो प्लीज़ करो, प्लीज़ प्लीज़ करके देखो, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट ऑल गुड यू हैव गॉट इन योर लाइफ, ठीक है, तो तुम्हें सच में चीज़ें एक बड़े पर्सपेक्टिव से दिखनी शुरू होंगी। और जब तुम किसी और को देखोगे ना नीड में, या किसी और को देखोगे जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो तुम्हें दिल से मन करेगा कि काश तुम उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सको, काश तुम कुछ ऐसा कर सको कि उन लोगों की लाइफ भी अपलिफ्ट हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज हम बोल देते हैं कि बी काइंड, स्टे काइंड और ये सब। अगर तुम खुद के साथ काइंड नहीं हो तो शायद ही तुम अपनी दुनिया के साथ काइंड हो पाओगे। ठीक है। ये जो ये जो ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना यार, ये जो भारी हो जाते हैं हमारे ऊपर, हमें इनसे दूर रहना है। ठीक है। ये ये कंपैरिजन, जेलसी, डर या फिर गुस्सा, हम फंस के रह जाते हैं, है ना। और ये सब इमोशंस हैं, ये सब ह्यूमन इमोशंस, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव दीज इमोशंस इन योर सेल्फ, बिकॉज दीज इमोशंस आर वॉट मेक यू हु यू आर, राइट। तुम एक होलसम, तुम एक पूरे बड़े ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है। तो ये सारे इमोशंस ही तुम्हें बना रहे हैं कहीं ना कहीं, पर ये ध्यान रखो कि ये सब हावी ना हो तुम पर, right? So I guess that's it about this video. And thank you so much for watching. If you're still here, you can follow me on Instagram. I'll attach the link in my description. And I just want to say that, guys, take care of yourself. It is high time. ठीक है। किसी भी सुपरस्टिशंस में मत आना, तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखो, surround yourself with good positive energies, because it is very important to do that. And at the same time, don't forget to acknowledge the fact, whatever negative is happening around you, stay aware of that, keep taking, मतलब वो चीज़ें भी लो, लेकिन इतना मत लो कि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे किसी तरीके से। ठीक है। So yeah, that's it for today. I'll see you in the next one. Most probably wine होगी। ठीक है। And bye bye.